تو میں آپ سب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تو آپ سب لوگوں سے واقف ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں اپنا مختصر تعارف، میرا نام شمیم عباس ہے۔ خواتین و حضرات، ایسٹرن نیوز اخبار کی جانب سے منعقد ہونے والی آج کی سالانہ تقریب کے پہلے دور کی میزبانی کے لیے مجھے حکم ہوا اور میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ پہلا دور تقسیم اسناد پر مبنی ہوگا، جبکہ دوسرے دور میں مقامی شعراء اپنا منتخب کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں اس پہلے دور کا باقاعدہ آغاز کروں، بہت ہی احترام کے ساتھ ہندوستان کے کونسل جنرل عزت مآب جناب سی ایم بھنڈاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ جناب سی ایم بھنڈاری صاحب۔ خواتین حضرات، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی بھی مدعو کیے گئے، لیکن ابھی تک کسی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ جناب نثار بلوچ صاحب، انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے ان کو یہاں میں مدعو کروں گا۔ اب میں آج کی اس تقریب کے منتظم اعلیٰ ایسٹرن نیوز کے مدیر جناب مسعود خان صاحب سے استدعا کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مسعود خان صاحب۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے ہی کہ ایسٹرن نیوز اخبار سن 1979 سے آپ سب کی خدمت کر رہا ہے۔ مسعود خان اردو کی محبت سے سرشار ہیں۔ انہوں نے ایسٹرن نیوز سے قبل بھی ایک اخبار جاری کیا تھا جسے آپ یہاں اردو اخبارات کی تاریخ کا دوسرا اخبار کہہ سکتے ہیں۔ خود ایسٹرن نیوز کے اجرا کو آج 20 سال اور 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ عرصہ مسعود خان کی اردو زبان و تہذیب سے محبت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ 1980 میں جب ٹورانٹو میں پاکستانی میڈیا کی پہلی تنظیم وجود میں آئی تو مسعود خان دوسرے اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندوں کے ساتھ اس تنظیم میں شامل رہے اور بعد میں اس کے چیئرپرسن منتخب ہوئے۔ اس تنظیم کو ہم کینیڈین ایسوسی ایشن آف پاکستانی میڈیا یعنی کیم کے نام سے جانتے ہیں۔ مسعود خان تقریباً 30 سال سے ٹورانٹو میں سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان سماجی کاموں کی فہرست بہت طویل ہے، اور اگر میں تفصیل میں چلا گیا تو کافی تاخیر ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، مسعود خان ایک کامیاب بزنس مین ہے، اور کامیاب بزنس مین کی صرف یہی تعریف نہیں کہ وہ بزنس کی اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، بلکہ کامیاب بزنس مین وہ کہلاتا ہے جو زبان و تہذیب کے حوالے سے اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ مسعود خان ان ذمہ داریوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1995 میں انہوں نے مقامی اہل قلم کی پذیرائی اور ہمت افزائی کے لیے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو اس سے قبل یا بعد میں پورے شمالی امریکہ میں کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ روایت ہے ہر سال مقامی اہل قلم کو ادبی ایوارڈ پیش کرنے کی۔ آج ہم اور آپ اس تقریب میں موجود ہیں۔ یہ تقریب اپنی نوعیت اور افادیت کے اعتبار سے شمالی امریکہ کی واحد ادبی تقریب ہے جس میں ابھی کچھ دیر کے بعد مقامی اہل قلم کو ادبی ایوارڈز پیش کیے جائیں گے۔ ادبی ایوارڈز کے علاوہ یہ ادارہ زبان و تہذیب کی خدمت کرنے والوں کی خدمت میں بھی ایوارڈ پیش کرتا رہتا ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کے سماج اور معاشرے پر کیا احسانات ہیں، وہ معاشرے کی فلاح کے لیے کس قدر پریشان ہیں، یہاں یہ بحث نہیں کرنا۔ کسی بھی اہل قلم کے تذکرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور ایسے افراد کی تعظیم و تکریم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے اور غالباً آپ کے اذہان میں بھی اس سوال کا شاید یہی جواب ہو کہ وہ تہذیبیں ہی ترقی یافتہ کہلانے کے مستحق ہیں جو فنکاروں کی بھی قدر کرتی ہیں۔ جو صاحب مرحوم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ شاعری کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، بلکہ شاعر کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ کسی ایک موضوع، کسی ایک مقصد، کسی ایک تعلیم، کسی ایک فلسفے اور حیات کے کسی ایک رخ کے اندر قید ہو کر نہیں رہ سکتا۔ وہ تو ہواؤں کی طرح اور مثل برگ آوارہ خرام تصورات کی طرح بے قید و بند اور ایتھر کی طرح آزاد ہے۔ اس کے سپرد تو ناقابل فراموش، ناقابل شمار فرائض ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک منزل پر ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، حالانکہ ہر منزل اس کی ہے۔ اس کا کام تو ہر پست و بلند پر چمکنا اور ہواؤں کی طرح ہر خار و گل کا منہ چومنا ہے۔ وہ تو اپنے مشاغل کی فراوانی کے باعث گھبرایا گھبرایا سا رہتا ہے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کس فریضے کو انجام دے اور کسے ملتوی کر دے۔ اسے تو ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ دردناک لہجے میں آواز دیتا ہے کہ اے شاعر مجھے بھی شعر بناتا جا۔ اور دوسری طرف شاعری خود حیات کی مصوری اور زمانے کی تاریخ نویسی کا تو ہی نام ہے۔ خواتین و حضرات، تقسیم اسناد کے سلسلے کی یہ 5ویں تقریب ہے۔ اس سے قبل جناب عابد جعفری، جناب خورشید عالم، محترمہ نسیم سید، جناب اکرام بریلوی اور جناب اطہر رضوی، جناب اشفاق حسین، جناب رضا الجبار، جناب خلیل یوسف صدیقی، محترمہ نصرت صدیقی، جناب معین اشرف اور جناب جمال زبیری کو شاعری، نثر نگاری اور اردو کی خدمت کے ایوارڈ دیے جا چکے ہیں۔ اس فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایوارڈز پانے والے واقعی حقدار تھے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم تمام حقداروں کو ایوارڈز پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایوارڈ کمیٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک شاعر اور ایک نثر نگار کا انتخاب کرتی ہے۔ اس لیے جن اہل قلم کا انتخاب نہیں ہو پاتا، انہیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک قدرتی بات ہے۔ اگر صبر و تحمل سے کام لیا جائے تو ہم پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ایوارڈ کمیٹی کسی اچھے لکھنے والے کو نظر انداز نہیں کرے گی اور حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے گا۔ خواتین و حضرات، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا کچھ وقت لیا، مگر یہ تمہید بھی ضروری تھی۔ اب میں ایسٹ نیوز کے ایڈیٹر اور تقریب کے منتظم اعلیٰ جناب مسعود خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور مہمانوں کا خیر مقدم کریں۔ خواتین و حضرات، جناب مسعود خان۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ شمیم بھائی نے ایک زیادتی کر دی، مجھے تو کینیڈا آ کے ابھی 23 سال ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کریکشن کر لیجئے کہ 23 سال سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 1976 میں کوئی بات نہیں، 1976 میں جب میں پہلی دفعہ اردو پروموشن بورڈ کو رجسٹر کرانے اور انکارپوریٹ کرانے گیا تو اس وقت کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو اردو زبان کی ترقی کے لیے کینیڈا میں کام کر رہی تھی۔ مجھے خاصی مایوسی بھی ہوئی، لیکن اس وقت اتنے لوگ یہاں رہتے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے اور بہت بہتر لوگ آتے گئے، اور آنے کے بعد کئی تنظیموں کا وجود ٹورنٹو میں ہوا، جس میں رائٹرز فورم اور بہت اچھی اچھی تنظیمیں بن گئی ہیں جو بہت خدمت کر رہی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ میں ان کے لیول کی خدمت نہیں کر سکوں، لیکن دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہاں جو لوکل مقامی شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کی ریکگنیشن نہیں ہوتی، نارتھ امریکہ میں کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے ایک بڑے محترم ہیں جو آج تشریف نہیں لا سکے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خلیل یوسف صدیقی صاحب، انہوں نے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ عابد بھائی، بھائی تو نہیں کہوں گا، دوست ہے، یار ہے عابد میرا، عابد نے بہت ہمت بڑھائی، اور عابد کی تجویز تھی کہ بھائی شعراء کو اس طریقے سے اکنالج کیا جائے۔ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جس شعراء کا، جس شاعر کا، جس ادیب کا ہر سال ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی سلیکشن کرتی ہے، بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے واقعی حقدار تھے۔ جو انتظامیہ کمیٹی ہے، جو اس کی ایوارڈ کمیٹی ہے، اس میں میرا یا میری بیوی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں نامینیٹ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایوارڈ دیتے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسے سلیکٹ کیا جائے، کسے سلیکٹ نہیں کیا جائے۔ پھر بھی جیسے شمیم صاحب نے کہا کہ اگر کسی شاعر کی یا کسی ادیب کی بر وقت سمجھ لیجیے انتخاب نہیں ہوتا اور دل آزاری ہوتی ہے، تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے، اس کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یقین کریں جس کا سلیکشن نہیں ہوتا اس میں کم سے کم میں قصوروار نہیں ہوں یا میری فیملی قصوروار نہیں ہے۔ ایک خدمت ہم کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک آپ لوگوں کی ہمارا ساتھ رہے گا آپ لوگوں کا۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سال اور ہر سال، خاص طور پہ ہمارا میڈیا جس نے بڑی مدد کی۔ میرے سب دوست یہاں آئے ہوئے ہیں، وطن کے مشرف حسنی صاحب ہیں اور لطافت صدیقی صاحب ہیں، ہمارے ایشین نیوز زبردست پیپر ہے، وائس کے سدھیر صاحب ہیں،
اور ہمارے حمید صاحب ہیں آواز کے، اور روشنی کے مقبول صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں سب دوست ہیں، ان سب نے بڑی مدد کی، بڑا پروموٹ کیا، اور اس کا رزلٹ سامنے ہے کہ آپ سب تشریف لائے ہیں۔ میں عابد جعفری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، شنگباز صاحب کا بھی، اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں جناب بھنڈاری صاحب کا، جو میری ہر تقریب میں آتے ہیں۔ درشن سہوتا صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ یہ چھوٹا سا ایوارڈ آج ہم انہیں پیش کریں گے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ایوارڈ کے حقدار ہیں، لیکن ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ جو اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں، میں ان کو شو بز کا کنگ کہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ آئے اور غائب ہو گئے، لیکن درشن سہوتا ایک ایسا نام ہے کہ جب میں کینیڈا آیا تھا وہ اس وقت بھی چمک رہا تھا اور آج بھی چمکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو شاعر، اور مجھے یقین ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں چمکتا رہے گا۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ تشریف لائے۔ میں مینجمنٹ کمیٹی کا بھی، اور جو حضرات جن کا نام میں نے مس کر دیا ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس موقع پہ میں اپنی وائف کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں، عالیہ کا، کہ وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہیں اور آج بھی آئی ہوئی ہیں۔ تھینک یو۔ شکریہ مسعود۔ خواتین و حضرات، اب میں جناب صدر کی اجازت سے تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے شہر کے ممتاز و معروف میڈیا مین جناب درشن سہوتا کو اردو کی خدمت پر ایک توصیفی سند پیش کریں، مگر اس سے قبل کہ میں شری درشن سہوتا کو اسٹیج پر بلاؤں، ان کے تعارف کے لیے شہر کے ممتاز اہل قلم اور اخبار روشنی کے مدیر جناب ناظم الدین مقبول صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور درشن سہوتا صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خواتین و حضرات، جناب ناظم الدین مقبول صاحب۔ السلام علیکم۔ شیخ جی باتیں کریں قرآن کی رحمان کی، اور پنڈت داستاں چھیڑا کریں بھگوان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے ناظم الدین مقبول کہتے ہیں۔ مجھے اس آرگنائزنگ کمیٹی کے عابد جعفری صاحب نے جب یہ حکم دیا کہ مجھے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا ہے جن کا نام درشن سہوتا صاحب ہے، تو میں تھوڑا سا گڑبڑا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ گیت مالا فیملی سے بھی میرا تعلق ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں درشن صاحب کی تعریف میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تعریف ہے، مدح سرائی ہے۔ تو پھر عابد صاحب نے اس مسئلے کو یوں حل کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں کو آج بلایا گیا ہے ظاہر ہے سب تعریف و توصیف کے مستحق ہے، تو میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو انگریزی کی سیئنگ ہے کہ بیونڈ ریلیجن، بیونڈ ریس، بیونڈ کلچر دیر ایگزسٹ ہیومن بیوٹی ود ان us, that is the human kindness۔ اور شاید یہ بات، یہ جملہ جناب درشن سہوتا صاحب کے لیے پورا پورا فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ درشن سہوتا صاحب جن کے درشن آپ ہر ویک ٹی وی پہ کرتے ہیں، اور جن کی آواز آپ ہفتے کے 6 دن مستقل ریڈیو پر بھی سنتے ہیں۔ مجھے آج معاف کیجئے، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور کل ریکارڈنگ ہے، پتہ نہیں درشن صاحب کیا کریں گے۔ 1970 میں درشن سہوتا صاحب کینیڈا آئے، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کے شامیانے کو نئے مقام پر نصب کرنے کا جتن کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی جو جاب تھی وہ مشین ٹولز ڈیزائنر کی حیثیت میں شروع کی، اور ٹھیک اس کے 2 سال بعد یہ پھر میڈیا سے وابستہ ہو گئے، جو سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایشینز کمیونٹی کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، تو اس وقت یہ 1 گھنٹے کا دورانیہ کا ریڈیو پروگرام CHW 1250 AM پہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر 2 سال کے بعد
इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया उसमें बतदरीज इजाफा होता गया और आज 1972 के बाद से लेकर 99 तक मुतवातिर आप सिटी टीवी चैनल 57, केबल 7 पर, आयोन एशिया देखते हैं वीकेंड पर, और रोज़ाना चीन FM 100.7 पर आप सुनते हैं रेडियो गीतमाला। जो तवील दौरानिया का ये वाहिद प्रोग्राम है जो इतना, मुझे कहने दीजिए, मकबूल है या मशहूर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये रेडियो प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए जहाँ पे गीत संगीत का मनोरंजन देता है, वहीं पे कम्युनिटी के लिए बहुत सारी मालूमात भी फराहम करता है। एक मुशफ़िक़, एक मेहरबान चेहरे को आप देखते हैं। एक ज़ाहिर है कि एक घरेलू नाम शख्सियत के तौर पे दर्शन साहब का नाम लिया जाता है, और आप एक ऐसी आवाज़ को सुनते हैं जिसके कई रंग हैं। कभी जेवर के पहनने पर मासी के बाजू में दर्द की बातें करते हैं, तो कभी आंखें बंद करके किसी रेस्टोरेंट चले जाने का मशवरा देते हैं, तो कभी बच्चों से पूछे बगैर 2 हफ्तों की छुट्टी मौज मना कर आने की वादा करते हैं, तो कभी राजस्थान में किसी सोफे पर बिल्ली का बैठने का जिक्र होता है। गरज जो भी आप तिजारती प्रमोशन सुनते हैं, ये एक ऑलराउंडर के तौर पे अपना फरीज़ा अंजाम देते हैं, जिस तरह क्रिकेट में होता है। आजकल शोज़ करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में एशियन आकर आबाद हो गए हैं। लेकिन ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि 10-20 साल पहले जब एशियन की तादाद उतनी नहीं थी, उस वक्त बड़े मशहूर फिल्मी सितारों के या उन लोगों के शो करना जो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, वाकई कारनामा था। और आपको मोहम्मद रफ़ी मरहूम से बड़ी मोहब्बत रही है, चुनांचे आपने मोहम्मद रफ़ी के जितने कामयाब शोज़ यहाँ किए हैं और किसी ने नहीं किया आज तक। इसके अलावा किशोर कुमार और लता मंगेशकर के शोज़ भी आपके क्रेडिट पे जाते हैं। और फिल्मी सितारों में आपको पता होगा, जो लोग पुराने हैं यहाँ पे, अमिताभ बच्चन के जब उरूज का ज़माना था तब इन्होंने उसके कामयाब शो किए, और साथ में धर्मेंद्र के भी उन्होंने बड़े ही अच्छे से शो यहाँ पे मुनक़िद किए। उर्दू ज़बान से इश्क रहा है, और यही इश्क मोहब्बत इनको ग़ुलाम अली, जगजीत सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा जैसे सिंगर्स को लाने के लिए उकसाई, और अभी हाल में ग़ुलाम अली का एक शानदार प्रोग्राम भी उसका एक सबूत है। दर्शन साहब को इस बात का हमेशा फ़ख्र हासिल रहेगा, हालांकि वो फ़ख्र से गुरेज करते हैं, कि उन्होंने मैपल लीफ गार्डन के दरवाजे पहली बार एशियन कम्युनिटी के लिए खोले, वरना यहाँ पे मैपल लीफ जैसे महंगे तरीन कॉम्प्लेक्स में कोई शो करना आसान बात नहीं थी। मेरे ख्याल में एक एशियंस के लिए भी काबिल फ़ख्र कारनामा होगा। न सिर्फ ये, बल्कि CMC के ऑन्टेरियो प्लेस में उन्होंने पहली बार कोई प्रोग्राम को तरतीब दिया, और इसी तरह रॉयल थॉमसन हॉल और स्काई डॉम भी इसके मुँह बोलते सबूत हैं। और आपको मालूम है कि हर साल वंडरलैंड में जो फंक्शन मुनक़िद होते हैं, उसमें हर साल ये तवातर से किसी मशहूर गुलकार सिंगर को बुलाते हैं, और आप लोगों की तफरीह के लिए उसको मुफ्त पेश किया जाता है, जिसमें कोई तखमीने के मुताबिक 15 से लेकर 25,000 लोग शिरकत करते हैं। और इसी तरह इनकी चीन पिकनिक भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो हर साल बड़ी पाबंदी से ऑन्टेरियो प्लेस में मुनक़िद होती है, जिसमें अंदाजे के मुताबिक 70,000 के लगभग एशियंस इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और ये दिन भर के लिए पेश किया जाता है। आजकल थिएटर्स की बड़ी बूम है, हर तरफ थिएटर्स का चर्चा है, लेकिन सबसे पहले थिएटर्स का चेहरा भी इन्हीं के साथ जाता है। ब्लोर पर पैराडाइज सिनेमा, लैंसडाउन थिएटर और जेराड स्ट्रीट की टाकीस आज भी लोगों के जहनों में महफूज है, जहाँ पे न सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्में बताई जाती थीं, बल्कि ये एशियन कम्युनिटी के लिए एक राब्ते का ज़रिया भी बन गया था। रोशनी जो किसी और के काम आ जाए, एक दिया ऐसा भी रास्ते में जलाए रखना, शायद ये बात भी दर्शन साहब के लिए सही होती है। बल्कि आज आपने अगर टीवी देखा हो तो आपने इनका कमर्शियल प्रोग्राम मिस किया होगा, क्योंकि उन्होंने उस तिजारती प्रोग्राम को मस्जिद की तोसी तामीर के हक़ में दे दिया था।
خواہ وہ پاکستان کا ننھا حارث علی خان ہو یا کسی بلڈ کینسر کی مریضہ ہو یا کوئی دکھی ہو، یہ اپنے ریڈیو کو اور ٹی وی کو بڑی فراخ دلی سے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے ریڈیو اور ٹی وی کو کمیونٹی کی معلومات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل میٹر سے لے کے امیگریشن میٹرز تک اور کمپیوٹر ٹریننگ سے لے کے کسی اور بات ہونے تک بڑی خاصی اچھی معلومات پیش کی جاتی ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیلی فون کر کے اپنے ہی سوالات یا کوئی آپ کو پرابلم ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی سروسز ہے جس کے لیے یقیناً درشن صاحب قابل مبارکباد ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ درشن صاحب کے ساتھ ان کی پوری فیملی بھی اس کام میں جڑی ہوئی ہے۔ ان کے جو بڑے فرزند ہیں سدیپ سہوٹا، جو چین اسٹیریو میں بڑے کامیاب پروڈیوسر بھی ہیں، وہ ہر سال فوڈ بینک کو بڑے ہی فراخ دلانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ درشن صاحب بھی پیش ہوتے ہیں، اور آئی ایم او کے لیے فوڈ ڈیزنگ جو ڈرائیو ہوتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اس سے ان ضرورت مندوں کو غذا تقسیم کی جاتی ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ سیاسی حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ روزانہ بی بی سی سے ڈائریکٹ ہندی اور اردو کے خبریں اور سماچار پیش کی جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے ہمارے ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ہیں ان میں ایڈیٹڈ ورژن آپ دیکھتے ہیں، جبکہ یہ سروس ڈائریکٹ ہوتی ہے، یعنی صبح سویرے جو بی بی سی میں جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے اسی وقت آپ یہاں پہ سن رہے ہیں۔ اور 30 منٹ کی یہ اردو سروس میرے خیال میں اردو والوں کے لیے بھی ان کا ایک عطیہ ہے، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ایسٹرن نیوز اور آرگنائزنگ کمیٹی یقیناً قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے درشن سہوٹا صاحب کو اس اپنے انعام کے لیے منتخب کیا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انعام انہیں پہلے دیا جاتا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں چونکہ درشن صاحب کو ذاتی طور پہ جاننے لگا ہوں، ان کی محبتیں بھی میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ میرا جو پروگرام سنتے ہیں منگل کو، انہوں نے کسی دن مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پروگرام میں یہ کیوں کہا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا پروگرام پورا 100% اردو زبان میں ہے۔ تو ان کے لیے تالیوں میں استقبال کر لیجئے اور ان کی سروس کے لیے ان کو داد دیجئے۔ شکریہ۔ شکریہ ناظم صاحب۔ خواتین و حضرات، میں اب شری درشن سہوتا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی میں سی ایم بھنڈاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سہوتا صاحب کو توصیفی سند برآمد فرمائیں۔ جناب درشن سہوتا صاحب۔ سہوتا صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند جملے بہرحال یقیناً درشن سہوتا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ان کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ایک اور جو سند ہے وہ جاتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت انسان کو، تو وہ ایک مخلص کارکن اور یقیناً مسعود صاحب کے بہت گہرے دوست، اردو کے خوبصورت خطاط اور ایک انتہائی اچھے انسان جناب اشفاق رضوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب اشفاق رضوی صاحب۔ اشفاق صاحب، آپ تو کم از کم مجھے نامید نہ کریں، کچھ کہہ دیں تھوڑا سا۔ خواتین و حضرات، اب دو خالص ادبی ایوارڈز۔ پہلا ادبی ایوارڈ 1999 کا بہترین نثر نگار، اور دوسرا
सन 1999 का बेहतरीन शायर के उन्वान से है। 1999 का नसर निगार जनाब जावेद दानिश साहब को तस्लीम किया गया। ड्रामों के मजमूए, हिजरत के तमाशे। जावेद दानिश साहब के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। जावेद दानिश हिंदुस्तान के इल्म व अदब के मरकज़ कलकत्ता में पैदा हुए। वालिदैन का ताल्लुक़ अदब व तहज़ीब के गहवारे लखनऊ से है। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी शोराए आफाक दरसगाह से अंग्रेज़ी में BA ऑनर्स की डिग्री ली। स्कूल के ज़माने से उनका रुझान ड्रामों की तरफ था, चुनाचे बहुत कम उम्र में उन्होंने ड्रामे तहरीर किए और उनमें अदाकारी भी की। तालीम से फरागत के बाद कलकत्ता रेडियो और स्टेज के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। बेशुमार रेडियाई ड्रामे तहरीर किए, इनमें अदाकारी के जौहर दिखाए और वो यूं पूरी तरह ड्रामों के नशेब व फराज से वाकिफ़ होते चले गए। जावेद दानिश को 4 ज़बानों पर मुकम्मल उबूर हासिल है। पहली इनकी मादरी ज़बान उर्दू है, दूसरी उनकी कौमी ज़बान हिंदी है, तीसरी इनकी जाए पैदाइश की ज़बान जिसे बंगाली या बंगला कहा जाता है, और चौथी वो है जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की, यानी अंग्रेज़ी। जावेद दानिश को अब तक कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। उनका पहला एजाज़ ये है कि वो पहले हिंदुस्तानी हैं जिनके तहरीर किए हुए ड्रामों को 2 मरतबा यानी सन 1983 और सन 1985 में न्यूयॉर्क ड्रामा फेस्टिवल में पहले इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया। इसी तरह मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी कलकत्ता की तरफ से इन्हें 2 मरतबा यानी 1984 और फिर 1979 में साल के बेहतरीन ड्रामा निगार के अवार्ड्स दिए गए, और एक खूबसूरत शील वो 1983 में यूपी उर्दू अकेडमी लखनऊ से भी हासिल कर चुके हैं। जावेद दानिश बुनियादी तौर पर ड्रामा निगार हैं, मगर इसके साथ साथ वो खुश फिक्र नज़म गो शायर भी हैं और मुस्तरद सफ़रनामा निगार भी। उनकी पहली किताब का नाम प्रोमेथिस था। ये किताब रेडियाई ड्रामों पर मुश्तमिल है। उनकी दूसरी किताब का नाम आवारगी है। ये यूरोप और अमेरिका का सफ़रनामा है। उनकी तीसरी किताब का नाम काले जिस्मों की रियाजत, ये अफ्रीकी अदब का उर्दू तर्जुमा। इनकी चौथी किताब का नाम मज़ीद आवारगी है। ये जापान, हांगकांग और बैंकॉक का सफ़रनामा है। यहाँ पहुँच कर शायद उन्होंने महसूस किया कि आवारगी की बेखद होती है। इसके बाद मज़ीद कोई आवारगी देखने या सुनने में नहीं आई। इनकी 5वीं किताब का नाम विरसा है। ये आलमी लोक कहानियों का उर्दू तर्जुमा। इनकी 6ठी किताब का नाम हिजरत के तमाशे है। ये शुमाली अमेरिका में मुकीम तारिकीन वतन के दुख सुख के ड्रामों का मजमुआ है। हिजरत के तमाशे जावेद दानिश की अहम तरीन किताब है, जिसके 2 एडिशन अब तक छप चुके हैं। इन ड्रामों में पाक व हिंद से यहाँ हिजरत करके आए हुए उन घरानों की कहानियाँ हैं जो 2 तहजीबों में चक्की के 2 पार्टों के दरमियान अनाज की तरह पिस रहे हैं। जावेद दानिश ने इन ड्रामों में रुलाया भी है और हंसाया भी। उन्होंने इन ड्रामों को बेजा खौफ और नामहरूमियों के बोझ तले दबने नहीं दिया, बल्कि हिजरत के उन पहलुओं पर भी रोशनी डाली जो मुस्बत पहलू हैं। हिजरत के तमाशे की सारी कहानियाँ हमारी अपनी हैं। इनके किरदारों से हमारा हर रोज़ साबका पड़ता है। चुनाचे इनके ड्रामे यहाँ रहने वाले तारिकीन वतन के दिलों पर बराह रास्त असर करते हैं। अगर इन्हें हमारे माहौल में स्टेज किया जाए तो यकीनन कामयाब रहेंगे। जावेद दानिश सिर्फ ड्रामा नवीसी नहीं, बल्कि ड्रामे के तमाम शोबों पर गहरी नज़र रखते हैं। इसलिए उनके ड्रामों को आसानी से स्टेज किया जा सकता है। अवार्ड कमेटी ने हिजरत के तमाशे के मुताले के बाद उसे बेहतरीन नस्ल करार देते हुए अदबी अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया। ख़वातीन व हज़रात, आइए हम सब मिलकर उर्दू के इस बासलाहियत और मुमताज़ ड्रामा नवीस जनाब जावेद दानिश का भरपूर इस्तकबाल करें। जनाब जावेद दानिश साहब। और इसके साथ ही मैं मोहतरमा आलिया साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो कैश अवार्ड के सिलसिले में यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरमा आलिया खान।
جاوید اگر آپ چند لمحات مجھے دیں تو آپ کے سننے والے بے چین ہیں، یقیناً آپ کی تحریروں سے تو واقف ہیں، تقریر سے بھی آگاہ ہو جائیں تو بہتر. حاضرین محفل، میں ایسٹرن نیوز مسعود خان صاحب اور اس ایوارڈ کمیٹی کا ممنون و مشکور ہوں. میں تو ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں جس کمیٹی نے آج تک یہ سوچ کر ایوارڈ نہیں دیا تھا کہ 4-6 کتابیں آ جائیں تب ایوارڈ دی جائیں گی. تو بہرحال بہت مختصراً 4 مصرے، بہت مختصر سا تعارف ہے میرا. نہ درد دروں ہوں نہ راز نہا ہوں. بہت مختصر سا تعارف ہے میرا. نہ درد دروں ہوں نہ راز نہا ہوں. کتابوں میں مجھ کو کہاں ڈھونڈتے ہو، کتابوں میں مجھ کو کہاں ڈھونڈتے ہو، میں چہروں پہ لکھی ہوئی داستاں ہوں. بہت بہت شکریہ جاویدانی صاحب. لیجیے خواتین و حضرات، اب آخری ایوارڈ 1999 کے بہترین شاعر کو پیش کیا جائے گا، اور وہ ہیں ہمارے شہر کے ممتاز شاعر جناب تسلیم الہی زلفی صاحب. تسلیم الہی زلفی کو یہ ایوارڈ ان کی کتاب تنہا پرندے کی اڑان پر دیا گیا. میں تسلیم الہی زلفی صاحب کو یہاں مدعو کرنے سے قبل چند جملے ان کے تعارف کے حوالے سے کہ جو لوگ عصر حاضر کی اردو شاعری کے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں وہ ہمارے شہر کے ایک اہم شاعر تسلیم الہی زلفی سے ضرور واقف ہوں گے. تسلیم الہی زلفی کا شمار اردو کے ان خوش قسمت شعراء میں ہوتا ہے جو تعارف کرائے جانے کی احتیاج سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یہ تعارف تو محض ایک رسم ہے، اور اچھی رسمیں اگر قائم رہ جائیں تو تہذیبوں کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو صاحبو، تسلیم الہی زلفی ایک تسلیم شدہ شاعر ہے اور اپنے ہم اثر شعراء میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں. پاک و ہند کے ادبی جرائد میں ان کی شاعری پابندی سے شائع ہوتی ہے اور لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے اور سراہتے ہیں. تسلیم الہی زلفی میں ایک کمال ایسا بھی ہے جس سے تاریخ آدم و عالم میں کوئی اور شاعر فیضیاب نہ ہو سکا، یعنی ان کی ادبی عمر ان کی طبعی عمر سے کہیں زیادہ ہے. اور وجہ اس حصول کمال کی یہ ہے کہ ان کی طبعی عمر کی گھڑی 25-30 سال چل کر ایسی ٹھپ ہوئی کہ پھر دوڑتا بھاگتا وقت بھی اس میں حرکت نہ پیدا کر سکا. مگر شعری عمر کہاں رکنے والی، 35-40 سال سے اسی رفتار سے چل رہی ہے اور اس کی توانائی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اچھی شاعری کے لیے مسلسل مشق اور وسعت فکر دونوں درکار ہوتے ہیں. سو یہ دونوں نہیں نعمتیں تسلیم الہی زلفی کو میسر ہیں، جس سے ان کے اشعار میں ایک طرح کی پختگی آ گئی ہے، ایسی پختگی کہ اگر اس شاعری کو پہاڑ پر دے ماریں تو ہزاروں جھرنے پھوٹ پڑیں اور اس سے ایسا ترنم فضا میں بکھرے جو پورے عالم پر ایک وجد کی کیفیت طاری کر دے. وہ الانگ پھلانگ کر یا شعراء کی صفوں کو، میں بھی تو محنت کر ہی رہا ہوں خیر، حالانکہ میرا کوئی ایوارڈ نہیں ہے. بہرحال وہ الانگ پھلانگ کر یا شعراء کی صفوں کو درہم برہم کر کے یہاں تک نہیں پہنچے، بلکہ قدم قدم پر جد و جہد اور مسلسل ریاضت انہیں اس درجہ امتیاز تک پہنچا گئی ہے. یوں جیسے کوئی بوڑھا ہاتھ پکڑ کر کسی کھوئے ہوئے بچے کو اس کے گھر پہنچا دے. خواتین و حضرات، ایک بات میں تسلیم الہی زلفی کے حوالے سے اور کہنا چاہتا تھا، مگر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جناب عابد جعفری کے دل میں تمام شعراء کا درد سمایا ہوا ہے. اس لیے انہوں نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور مجھ سے عہد لیا کہ میں آنکھ بچا کر بھی اس بات کو اپنے تعارف میں شامل نہ کروں. مگر دوستو، ایفاء عہد کی آج کل کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے وہ بات حاضر خدمت ہے. وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہیں لکھا تھا کہ یہ حقیر پر تقصیر تسلیم الہی زلفی کا کلام پڑھ کر جتنا متاثر ہوتا ہے ان کی زبانیں سن کر نہیں ہو پاتا. آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب زلفی صاحب عشقیہ اشعار بڑے دبدبے سے پڑھتے ہیں اور پیرہن چاک کر کے صحرا میں نکل جانے کا مجدہ سناتے ہیں تو ان کی خوش لباسی کو دیکھتے ہوئے یہ یقین کرنا محال ہوتا ہے کہ اتنے قیمتی لباس کے ساتھ وہ ایسا مجنونانہ سلوک کر پائیں گے. اسی طرح محبت میں دیوانہ وار جب وہ دشت کی خاک چھاننے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کر ہمیں ہنسی آ جاتی ہے کہ مشاعرے میں آنے سے قبل انہوں نے کم از کم آدھ گھنٹے تک
अपने जूतों से खाक झाड़ी होगी, और ये हकीकत है, और इन्हें खूब चमकाया होगा। अब जो शायर शेर पढ़ते वक्त पैरहन पर शिकन और पापोश मुबारक पर खाक और धूल बर्दाश्त न कर सकता हो, वो अशार पर अमली मजाहरे के लिए दश्तो बयाबा में क्या जाएगा। मगर आबिद जाफरी कहते हैं कि ये सब तलमीहात और तशबीहात हैं, ज़रूरी नहीं कि शायर बनफ्स नफीस सहरा में जाकर खाक उड़ाए। वजह फरमाया, वो तो सख्त गर्मी में अपने दीवान खाने के एयर कंडीशन माहौल का लुत्फ लेते हुए भी सहराना वर्दी कर सकता है, और खूबसूरत लिबास जेब तन करके भी चाक गरेबानी का दुख उठा सकता है। आबिद जाफरी के इस इतराफ़ के बाद हम अपना एतराज़ वापस ले लेते हैं, इसलिए कि बहमदुल्लाह मैं शायर नहीं हूँ। तस्लीम इलाही जुल्फ़ी बहुत अच्छे शायर हैं, मगर ये राय तो उनके नामी ग्रामी नाक़दीन की है, जो उनके कलाम का कई बार पोस्टमार्टम कर चुके हैं और हर बार उसे बेहतरीन कलाम तस्लीम किया गया। मुख्तसर ये कि हर अच्छा और सच्चा लिखने वाला तस्लीम इलाही जुल्फ़ी की शायरी को कद्र की निगाह से देखता है और इन्हें असर हाजिर का अहम तरीन शायर करार देता है। तस्लीम इलाही जुल्फ़ी के 3 शेरी मजमूए शहर अफकार, दस्तावेज़ और तन्हा परिंदे की उड़ान अब तक मंजर आम पर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। आगरा से नयागरा इनकी सयाही नज़मों पर मुश्तमिल है। ये मशहूर मकामात और ममालिक के हवाले से मंजूम सफ़रनामे की एक अच्छी मिसाल है। इनका एक और नज़मों का मजमुआ अबाबीलें नहीं आई भी मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें आलमी वाक़यात के हवाले से शायरी है। गोया आगरा से नयागरा अगर जोग्राफिया है तो अबाबीलें नहीं आई तारीख़ कही जाएगी। नस्र के हवाले से भी जुल्फ़ी की 2 अहम किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनके नाम सुखनवर बहुत अच्छे और दुनियाए तसव्वुफ़ है। इसके अलावा इमाम आली मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दीवान का उर्दू तर्जुमा आजकल ज़ेर तरतीब है। इस तफसील को देखते हुए आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवार्ड कमेटी ने तस्लीम इलाही जुल्फ़ी को ईस्टर्न न्यूज़ अदबी अवार्ड का मुस्तहिक क्यों करार दिया। यह अवार्ड इन्हें इनके ताज़ा मजमूए कलाम तन्हा परिंदे की उड़ान की तख्लीक पर दिया जा रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, अपनी बेपनाह तालियों में इस्तक़बाल कीजिए जनाब तस्लीम इलाही जुल्फ़ी। और इसके साथ ही आलिया पेश कर रही हैं कैश अवार्ड। मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं तकरीर करने वाला शख्स नहीं हूँ। जो कुछ कहना होता है मैं अशार में कहता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त इदारे ईस्टर्न न्यूज़, मसूद खान साहब और अवार्ड कमेटी के तमाम मेंबरान का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे कलाम को, मेरी तख्लीक़ात को, मेरे फ़न को, मेरी फ़िक्र को इस मेयार, इस काबिल समझा कि मुझे इस अवार्ड का मुस्तहिक़ करार दिया। मैं ये भी शिकायत नहीं करूँगा कि ये ताख़ीर क्यों हुई। आबिद ने, बल्कि शमीम अब्बास साहब ने सही कहा कि शायर और अदीब बहुत हैं और अवार्ड हर साल सिर्फ 2 लोगों को दिए जाते हैं। और आबिद ने भी एक बात की वजाहत की थी, जो कि अवार्ड कमेटी के चेयरमैन हैं, कि अवार्ड जो दिए गए हैं अब तक वो कनाडा में जिस तरतीब से लोग आए हैं, शायर और अदीब, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से दिए गए हैं। बहरहाल मुझे चूँकि अभी सिर्फ 11 साल हुए हैं तो मेरा आज नंबर आया है। बहरहाल मैं तहे दिल से तमाम हज़रात का ममनून हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जुल्फ़ी साहब। ख़वातीन हज़रात, मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब सदर इज़्ज़त माब जनाब CM भंडारी साहब से कि वो सदारती खुतबे के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब CM भंडारी साहब।
मसूद भाई, शमीम भाई, आज की शाम के आई एम सॉरी मुझे उर्दू ज़बान तो आती नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आप सब लोग उर्दू जानते हैं तो हिंदी भी जानते हैं, तो मैं जो कुछ मुझसे हो पाएगा बोलूँगा। तो आज इस शाम के जो भी मेहमान हैं हमारे, और जिनको कि आज यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं, और दोस्तों, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आपने मुझे इस महफ़िल में बुलाया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक पहला ये जलसा मैं देख रहा हूँ जहाँ पर कि अदब के लिए कुछ काम किया जा रहा है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैंने न जाने कितने फंक्शंस अटेंड किए होंगे, और तरह तरह के अवार्ड्स भी, कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट या प्रिजाइड किया होगा, वो चाहे डांस के हों, चाहे फैशन के हों, चाहे ब्यूटी के हों, चाहे फिर ट्रेड के हों, या तरह तरह के दूसरे। लेकिन एक पहली बार मसूद साहब ने मेरे पास ये चिट्ठी भेजी कि इनके अखबार की तरफ से एक ये अवार्ड आज 5 साल पहले चालू किया गया था, शुरू किया गया था। तो मुझे उसको जान के बहुत खुशी हुई, और हालांकि आज की शाम मैंने और भी दूसरे अपॉइंटमेंट्स लिए हुए थे, और मैंने मसूद भाई से कहा भी कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें, तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और आपसे तो मुलाकात हमारी होती रहती है, आपके हर फंक्शन में हम आते रहते हैं। ये क्योंकि इनकी अदाकारी जगह जगह है। ये खुद भी अदाकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और जर्नलिज्म में तो हैं ही हैं, ट्रेड, साथ में कम्युनिटी अफेयर्स। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप ज़रूर आइए। तो मैंने कहा भाई देखो, इफ्तिकार भाई मेरे हैं और वो तो वहाँ ज़रूर आएंगे, तो उनके रहते हुए काम अच्छा चलेगा। मैं दूसरी जगह ऑलरेडी कमिटेड हो गया हूँ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इफ्तिकार भाई आएँ ना आएँ उसका फ़र्क नहीं है, आपका आना ज़रूरी है। तो मुझे बहुत खुशी है, और इफ्तिकार भाई से भी मेरी बात हुई थी अभी, और बेगम साहिबा से भी उनकी, आज वो लोग यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने खास कर मुझसे कहा कि भाई आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए इस शाम में मुझे आने की बहुत एक एक्साइटमेंट था, लेकिन यहाँ आके वाकई में बहुत खुशी हुई। और ख़ासकर मुझे उर्दू ज़बान से, उर्दू तहज़ीब से और इस्लाम की नज़ाकत से बहुत बचपन से ही एक लगाव है। और उसका एक ख़ास जो मकसद है, क्यों लगाव है, वो ये कि वाकई में इस्लाम की तहज़ीब जो है, वो मेरे ख्याल से कोई दूसरी तहज़ीब इतने अच्छे मैनर्स इंसानियत को नहीं देती। और ये बात मैंने ज़बान में, जब मैं बचपन में छोटे हमारे और भी साथ के मुसलमान दोस्त लोग थे, तो उनके घर जाते थे, तो जिस तरह उनके पेरेंट्स, वालदाइन वगैरह एड्रेस करते थे कि मियाँ, या आइए, या बैठिए, तो ये सब बातें जो हैं ये मायने रखती हैं। और मैंने एक जगह एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो वो कहने लगे, बल्कि ये हमारे घर में ही हो रहा था और बहुत समय गुजर गया, अब तो 30 साल पहले की बात है। तो वो कथा कर रहे थे, तो कहने लगे देखिए, आज का ज़माना है जहाँ पर कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को सो एंड सो करके बुलाते हैं, या जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को सो एंड सो करके बुलाते हैं। तो उनका ये कहना था, देखिए हमारी तहजीब ये है जहाँ की हस्बैंड और वाइफ आपस में कभी एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते। और मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अपने 50 साल के मैंने टाइम में
कभी अपने वालदैन को एक दूसरे को कभी नाम कहते हुए नहीं सुना है। हमेशा यही सुना है कि चंदर के पिताजी या चंदर के जो भी है या चंदर की माँ। तो ये एक जो इसमें बहुत एक नज़ाकत है, और नज़ाकत के साथ साथ इसमें जो हम कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्ट की बात है। ये नहीं कि वो नाम नहीं ले सकते, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रिस्पेक्ट है, और वही रिस्पेक्ट एक दूसरे को आपस में बांधती है। और वही चीज़ हम यहाँ के कल्चर में नहीं पाते, और इसीलिए यहाँ पर आपस में वो क्लोजनेस जो होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स चिल्ड्रन में, वो नहीं आ पाती। तो इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप अदबी जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि अब क्योंकि कनाडा देश में और ख़ासकर टोरंटो शहर में हमारे साउथ एशिया से इतना बड़ा एक कम्युनिटी यहाँ पर है, और जो कि आपस में बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस कर रही है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे स्टैब्लिश हैं, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को यही एक तोहफ़ा उनको एक जो अपनी हेरिटेज है या जो भी है वो उनको दे सकते हैं कि भाई देखिए, अगर आप इस तहज़ीब को, इस ज़बान को और हमारे जो भी तौर तरीके हैं उनको आगे ले चलें और इन देशों को उसको दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक आज के अवार्ड्स विनर्स का सवाल है, सहोता साहब से मुझे बहुत करीबी से इनसे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और इनके बारे में जितना भी मकबूल साहब ने कहा मैं समझता हूँ कम ही कहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं ये भी इंसानियत में समझता हूँ कि जो आदमी जितना ऊंचा उठे अगर वो झुक कर चले तो वास्तव में वही सही उसका मकाम है और वही उसकी सही पहचान है। और वो बात मैं सौता साहब आप पर बिल्कुल पाता हूँ। इनके परिवार से भी मेरा बहुत अच्छा मिलना है, और इनके बेटे से, बेटी से, बेगम साहिबा से तो मेरी इतनी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी और लेकिन रेडियो के माध्यम से ज़रूर उनसे जो है उनकी एक आप समझे पिक्चर बिल्कुल सामने रह सकती है, उसमें कोई शक नहीं। और बाकी जो 3 आज के विनर्स हैं, आपके लिए भी मैं पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आगे को एक ये बात कहने लायक है, और ये मैंने कई दूसरे लोगों से भी सुनी, कि जब जब इस तरह की लिटरेरी मीटिंग्स हैं उसकी जो अटेंडेंस है वो बड़ी लिमिटेड है। अगर आप देखें कि अगर इस समय कोई यहाँ पर डांस या म्यूज़िक या और दूसरी तरह का कोई होता तो 1000 सीटों का भी हॉल होता तो शायद वो भी कम पड़ जाता। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें कुछ इस बारे में भी सोचना चाहिए कि क्यों ना हम इस लिटरेरी सर्कल को कुछ इस तरह का इंटरेस्ट इसमें डालें कि हम कम से कम अपने बच्चों को इसमें आगे करें, चाहे हमें उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़े। तो मेरे ख्याल से वो एडजस्टमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी वर्थ कंसिडरिंग है, ताकि उनको किसी बहाने इस ओर आगे किया जाए। और ख़ासकर किताबों में, और एक जो लेखक है, जो फनकार है, शायर है, उसके जो दिल की बात है और जो वो एक इंसानियत की स्टडी करता है, उस बात को बच्चों तक पहुंचाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैंने और भी कुछ हम लोगों की कभी कभी हिंदी ग्रुप्स जो हैं वो लोग इस तरह के करते हैं प्रोग्राम्स, तो वहाँ भी मैंने देखा अगर 100 तक नंबर पहुँच जाए तो वो सोचते हैं कि बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। जी हाँ। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आगे हम
इस तरह के प्रोग्राम्स को और आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सब लोगों को दावत देना चाहता हूं कि 12 तारीख को इसी तरह का एक फंक्शन हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कि पायल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में होगा 3 बजे से। तो आप में जो भी इंटरेस्टेड हों, इट्स ए ओपन प्रोग्राम, आप लोग ज़रूर आएँ। और एक बार फिर मसूद भाई, मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। बेहद शुक्रिया भंडारी साहब, एक मरतबा फिर हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने इस तकरीब में शिरकत फरमाई और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। और निसार बलोच साहब को हमने सबने मिस किया, वो किसी वजह से शायद तशरीफ़ न ला सके। इससे पहले कि हम आज की इस पहले दौर का अख्ताम करें, मैं उस ऐलान से गुरेज करूँगा जिसके बाद हाल फ़ौरन खाली हो जाता है, और वो है चाय का। लेकिन आज मुझे दोहरी खुशी हुई इस बात की कि हमने तो सबसे पहले उस रवायत को बरकरार रखा कि प्रोग्राम को ताख़ीर से शुरू किया, वरना एक अजूबा सी बात हो जाती। और दूसरी बात, जैसा कि भंडारी साहब ने फरमाया कि हकीकतन हमें अदब, तहज़ीब और ज़बान के एतबार से अपनी महफ़िलों को तादाद बढ़ानी चाहिए, लोगों में ये शऊर पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम सब चिराग सहरी हैं और उसके बाद क्या होगा ये मालूम नहीं। समोसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं मेरा आया ज़रूर है, कुछ अहले मकतब हूँ, कुछ लेके आया था ज़ख़ीरा, अगर मुझे आप 5 मिनट मैं ज़रूर आपको यहाँ नहीं, असल में ये होगा कि बाकिया 195 लोग जो पीछे बैठे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो वादा किया था उनसे, और वक्त यकीनन मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ और आपके ख़यालात का एहतराम कर रहा हूँ। ज़रा से मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि यकीनन आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, और आपकी तसल्ली तशरीफ़ी होगी, सुनने वाले आपसे महसूस होंगे। लेकिन चूँकि प्रोग्राम यूँ ही तवील हो गया, और मैंने इससे पहले ये तमीद बांधी कि प्रोग्राम की इस तवालत के बाद यकीनन जो हम वादा करते हैं चाय पानी का, वो भी होना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे मजमा बरकरार रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल आप मेरी नज़र में हैं, मसूद की नज़र में हैं। और इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा, वो जिसमें शोरा कराम तशरीफ़ लाएंगे और जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी हमारी नुज़रत सिद्दीक़ी साहिबा। तो ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अखबार के नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब मुशर्रफ हसनी और उनके साथी तमाम जिन्होंने यहाँ आज शिरकत की और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं अभी हाज़िर होता हूँ, और मैं भंडारी साहब का पहले मुझे शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए। मैं हर ज़बान के लिए, क्योंकि तहज़ीब और सखावत के लिए ज़बान की कोई महदूद नहीं है। इंशाअल्लाह आप हिंदी में पढ़िए, गुजराती में पढ़िए, फ़ारसी में पढ़िए, तमाम ज़बानों के लिए बहरहाल। लेकिन चूँकि उर्दू का फंक्शन है, हम कोशिश करेंगे कि पहले उर्दू से मुताल्लिक़ हज़रात यहाँ तशरीफ़ आ जाएँ, और उसके बाद फिर दीगर, जैसा कि मुंतज़मीन की ज़िम्मेदारी होगी, वो इस बात को ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं तो सिर्फ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हम ये 20 मिनट का ब्रेक करते हैं। आप सब लोग चाय नोश फरमा लीजिए इस अरसे में, और ठीक 20 मिनट के बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसी हॉल में तशरीफ़ ले आएँ, ताकि हम अपने प्रोग्राम के दूसरे दौर का आगाज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे दौर में शामिल होते हैं। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो बाहर तशरीफ़ फरमाएँ अंदर आ जाएं, ताकि हम अपने मुशायरे के इस दौर का आगाज़ कर सकें। हालांकि मुझे बताया गया कि चाय ख़त्म हो गई है, तो अब वो कोई कशिश बाकी नहीं रही बाहर।
इस दौर की निज़ामत की ज़िम्मेदारी मोहतरमा नुज़रत सिद्दीकी साहिबा के हवाले है। इससे कबल कि मैं नुज़रत को यहाँ मदऊ करूँ, नुज़रत के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ आपकी समाअत की नज़र। नुज़रत सिद्दीकी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए की डिग्री हासिल की। कॉलेज के ज़माने ही से शेर कहने की रग़बत हुई और ये शौक़ परवान चढ़कर संजीदगी और बड़ी शायरी में तब्दील हो गया। नुज़रत का एक मजमूआ कलाम पयाम अमन के नाम से 10 साल कबल शाया हो चुका है। आप हिंदुस्तान की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन शायरी का अवार्ड पा चुकी हैं। गुज़िश्ता साल ईस्टर्न न्यूज़ अदबी अवार्ड का भी आपको मुस्तहिक़ करार दिया गया। नुज़रत तकरीबन 25 बरस से ज़बान व अदब की खिदमत कर रही हैं। आजकल राइटर फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम रुकन है। मैं इंतहाई एहतराम के साथ सैयदा नुज़रत सिद्दीकी साहबा से इस्तदा करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे की नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। ख़वातीन हज़रात, मोहतरमा नुज़रत सिद्दीकी साहिबा। शमीम भाई, शुक्रिया तारुफ के लिए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि मैं मुद्दतों से यहाँ मुख्तलिफ़ मुशायरों में हिस्सा ले रही थी, लेकिन मैंने कभी भी निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए। इस दफ़ा जब जनाब आबिद जाफ़री साहब ने कहा कि आप निज़ामत कीजिए, तो मैंने कहा आखिर क्यों? वो कहने लगे इसलिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ और आप फोरम से के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो मुझे एक शेर तरमीम के साथ याद आया कि सदर फोरम बख़ते बोर्ड मरा करद असीर, दाम हम रंग ज़मी बूद गिरफ्तार शुदम। तो इस गिरफ्तारी के बाद अब मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जैसी भी हो आज निज़ामत की अपनी पहली बार ज़िंदगी में इब्तदा कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आज इस महफ़िल मुशायरा के सदर जनाब हिफ्ज़ुल कबीर कुरैशी साहब को स्टेज पर आने की दावत दूँगी। हिफ्ज़ुल कबीर कुरैशी साहब तारुफ़ के मोहताज नहीं, वो यहाँ के सबसे पहली अदबी शख्सियत हैं जिन्होंने अंजुमन उर्दू का क़याम किया और यहाँ सबसे पहला बैनुल अक़वामी मुशायरा जो था वो अंजुमन उर्दू में इन्हीं के ज़ेर एहतमाम 1981 में मुनक़िद हुआ था और अभी तक ये अंजुमन उर्दू के साथ वाबस्ता हैं और अपनी शेरी और अदबी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आज की महफ़िल मुशायरा के मेहमान ख़ुसूसी जनाब तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी, जिनको तमाम शोरा तस्लीम कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले शमीम अब्बास साहब ने बताया था, उनको मैं बुलाती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस महफ़िल में मेहमान ख़ुसूसी की नशिस्त संभालें। शोरा की फहरिस्त मेरे पास बहुत तवील है, लेकिन सबसे पहले मैं जिस शायर को यहाँ बुलाना चाहती हूँ उनके बारे में मुझे अच्छी तरह इल्म नहीं कि आया वो उर्दू में शेर कहते हैं या नहीं, लेकिन उनकी ज़ात तारुफ़ की मोहताज नहीं। मेरा हवाला इस वक्त जनाब उमेश विजय की तरफ है, जो यहाँ से बहुत ही अहम शाया होने वाले 3 अखबारों को निकालते हैं। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान से बाहर वो वाहिद इंसान हैं कि उनका एक अखबार संगम के नाम से पिछले 17 साल से हिंदी में निकल रहा है। इसके अलावा संगम के नाम से ही उनका एक दूसरा अखबार गुजराती में निकलता है और अब इस महीने से वो संगम उर्दू के नाम से एक अदबी मुजल्ला निकालना चाहते हैं। उमेश विजय साहब। वो जा चुके हैं। तो इसके बाद अगर उमेश विजय साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं तो मैं अर्जिंदर सिंह साहब से दरख्वास्त करूंगी, अगर वो महफिल में मौजूद हैं, कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम सुनाएं।
ارجندر صاحب پہلی دفعہ محفل مشاعرہ میں، اردو کے محفل مشاعرہ میں تشریف لا رہے ہیں. ان کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ ہندی اور پنجابی میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں. ارجندر سنگھ تشریف لائے. میں صدر محفل سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں پہلی بار آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس کے لیے میں خاص کر کے مسعود حسن صاحب، وہ یہاں پر تو نہیں، میرے خیال باہر گئے ہوئے ہیں، اور ناظمہ صاحب، عابد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں نصرت صدیقی کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ موقع دیا اور میری حوصلہ افزائی کی. اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا مقبول صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں، جنہوں نے مجھے حوصلہ دے کر یہاں اسٹیج تک پہنچنے میں میرا ساتھ دیا. اور خاص کر کے اس کے لیے میری ان سے جان پہچان تو بہت بالکل نہیں ہے، لیکن میں ریڈیو پر کافی عرصے سے ان کے ساتھ رابطہ میرا ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن پیچھے ایک فنکشن تھا، اس پہ وہ غلام علی صاحب آئے تو اس پہ ان کے سامنے ملنے کا مجھے موقع ملا تھا. خیر، یہ آگے چلتے چلتے اس طرح رشتے میں بدل گیا، ایک دوستی کے رشتے میں. اس مصروف زندگی اور بھاگ دوڑ کے بیچ میں کچھ وقت چرا کر کبھی کچھ لکھ لیا کرتا ہوں اور کسی کونے میں بیٹھ کر گنگنا لیا کرتا تھا. لیکن آج مقبول صاحب کی وجہ سے میں آپ کے سامنے، آپ کے روبرو ہوں کچھ کہنے کے لیے، جو کچھ میرے پاس تھوڑے بہت لفظ ہیں. اسے ویسے ہے تو یہ ایک مسلسل سوالیہ غزل سی ہے، جسے آپ تھوڑا لائن سے ہٹ کر ہے، جسے آپ شاید پسند کریں گے. اس سے پہلے میں دو لائنیں اور ہیں. ہر ذرہ تو آفتاب نہیں ہوتا، ہر لمحہ تو خواب نہیں ہوتا، زندگی میں چھپی کہیں حقیقت بھی تو ہے، ہر سوال کا ضروری کوئی جواب نہیں ہوتا. آج کیا ہے؟ بھیڑ میں رہ کر بھی اس دل کو تنہائی سی کیوں لگتی ہے، بھیڑ میں رہ کر بھی اس دل کو تنہائی سی کیوں لگتی ہے، دل کو شور کے اس موسم میں خاموشی سی کیوں لگتی ہے، دل کو شور کے اس موسم میں خاموشی سی کیوں لگتی ہے، جلتے دن میں یاد کسی کی، جلتے دن میں یاد کسی کی پروائی سی کیوں لگتی ہے، جلتے دن میں جیون کی دلہن اس دل کو، جیون کی دلہن اس دل کو السائی سی کیوں لگتی ہے، آج نظر محفل میں ان کی، آج نظر محفل میں ان کی انجانی سی کیوں لگتی ہے، آج نظر محفل میں ان کی، ہوش کے پگ پر من کی آشا، ہوش کے پگ پر
मन की आशा दीवानी सी क्यों लगती है, दीवानी सी क्यों लगती है। आज किया है, खुशियों की देवी, खुशियों की देवी अब हमसे, खुशियों की देवी अब हमसे बेगानी सी क्यों लगती है। शीतल कोमल प्यार की बरखा, शीतल कोमल प्यार की बरखा मस्तानी सी क्यों लगती है। शीतल कोमल प्यार की बरखा मस्तानी सी क्यों लगती है। पगडन शीतल कोमल प्यार की बरखा मस्तानी सी क्यों लगती है। पगडंडी ये प्रेम की यारो, पगडंडी ये प्रेम की यारो बलखाई सी क्यों लगती है। पगडंडी ये प्रेम की यारो बलखाई सी क्यों लगती है। प्यार का शायद रोग लगा है, प्यार का शायद रोग लगा है, ये बीमारी सी क्यों लगती है। प्यार का शायद रोग लगा है, ये बीमारी सी क्यों लगती है। उजियारे मन में अर्जिंदर, उजियारे मन में अर्जिंदर तारीकी सी क्यों लगती है, तारीकी सी क्यों लगती है। मैं इस महफिल के सभी अपने श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शमीम साहब का ख़ास करके जो आज इस महफिल को सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा। ये थे जनाब अर्जिंदर सिंह, उजारे मन में अर्जिंदर तारीकी सी क्यों लगती है। उमेश विजय साहब, आपका एक बड़ा तफसीली तारुफ हो चुका है। जिस वक्त आप बाहर तशरीफ़ रखते थे, मेहरबानी करके अब तशरीफ़ लाइए। फर्स्ट क्लास। हरे कृष्ण। मैं बहुत ही मुख्तसर समय में अपनी शायरी पेश करूंगा। शायरी मेरी बदकिस्मती से उर्दू में है। मैं बार बार उसको उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि कनेडियन। मैंने अभी अभी अपने छोटे भाई खान साहब, मसूद खान साहब के गले पे एक बिल्ला देखा। थोड़ी अंग्रेजी मेरी कमज़ोरी है, मी नो स्पीक मच इंग्लिश। बुजुर्गी बाकलस्त न बसाल, ये हमारे बड़े भाई जो आज बहुत ही बीमार हैं, और उर्दू के लिए जो उनके दिल में जो दर्द है, आज मुझे बड़ी खुशी होती है उनको कोई अपने साथ उठा के राइड दे के, जैसे हमारे सदर को लेके आए जुल्फी साहब। उनका नाम है नहीं लाहौल बिला खूबत। मैं उनका मैं अपने हैदराबाद के जो लाहौल बिला, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद के वो निज़ाम थे हुजूर, जो बीमार हैं, लोधी साहब जिन्होंने उर्दू की महफिलें आप सबों के लिए सजाई और 10 साल तक सजाई। बहुत ही बीमार हैं, जाने वाले हैं। उनके रुस्खत होने पे मैं फिर चारी तो फिर से माफ़ कीजिएगा। बुजुर्गी शादी कर रहा हूँ मैं ये
कहते हैं बुजुर्गी अक्ल से होती है, उम्र से नहीं। हमारी उम्र तो अभी बहुत ही कम है, 61 ही हूँ अभी मैं, न पोता न पोती। बात बोर करने की हो तो ठीक, बात बोर करने की हो तो ठीक, टेलीफोन पे बात बंद कीजिए। बात बोर करने की हो तो ठीक, ये जो कवि है, ये जो शायर है, ये तो बोर करने के चक्कर में है आज। तो शेर व शायरी के माहौल, शेर व शायरी का शौक़ आवाम को होता है। मैं पहले उर्दू अदब की महफिलों में आता था, सुनता था कोने में बैठ के। आज देखता हूँ सबको पढ़ने का शौक़ हुआ है, लेकिन आप सबों को मौका मेरे बराबर शायद न मिले। इसलिए भी ये जो कलम का सिपाही है, जितनी जल्दी हो सकेगा और जितनी तेज़ी से हो सकेगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और कलम नू सिपाही नू डरना क्या। तो मैं इतना बता दूं पढ़ने के पहले कि अगर मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं किसी सरकारी मुलाजिम के साथ यहाँ पे, क्योंकि वो तो चलेगा भाग कर मेरे डर से, जो भारतवर्ष के कौंसिल जनरल हैं, जो कहते हैं कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है, और यहाँ आके झूठ बोले कि हिंदी हमारी भाषा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा, हिंदुस्तान की मादरे ज़ुबान हिंदुस्तानी है, न उर्दू, न हिंदी, न संस्कृत। इसके ऊपर 6 तारीख जुलाई को वर्ल्ड हिंदी लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 69 करोड़ रुपए खर्च किए, वाजपेयी जी की हिंदू सरकार ने, उस पर मैंने रिजोल्यूशन के लिए मैंने मोशन पास किया। ये मेरी शायरी है आज की। मैंने कहा हिंदुस्तान की तवारीख में न कभी हिंदी थी, न कभी हिंदी है, न कभी हिंदी होगी। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू ही हो सकती। उर्दू थी, उर्दू है और उर्दू रहेगी। जब तक पंडित नेहरू जिंदा थे उर्दू थी, इंदिरा थी उर्दू थी। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वाजपेयी, आज भी उर्दू है, वो उर्दू में बोलते हैं, उनको हिंदी बोलने नहीं आती, उनकी हिंदी की कोई एजुकेशन नहीं है। मैं मास्टर्स हूँ संस्कृत में, मुझे मालूम है हिंदी क्या है, लेकिन मैं हिंदी से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है। क्यों इस पे ताली नहीं बजाएंगे आप? मेरा बाप सरदार है, मैं दोगला हूं हिंदुस्तान से, अपने वतन को छोड़ के यहाँ 32 साल से हूं, और मैं तालियां रोकिए, और मैं जो हूं, मैं इस्कॉन का प्रेसिडेंट हूं 1999 चार्टर से लेकर के 2007 साल तक। बीफ खा के, मुर्गी खा के, मछली खा के, शराब पी के, सिगरेट पी के मैं इस्कॉन का पीआर हूं, डायरेक्टर पीआर, और प्रेसिडेंट हुआ हूं अभी। हरे कृष्णा नहीं कहेंगे आप? हरे कृष्णा। बहरहाल मैं बहुत कुछ हूं, और मैं बहुत कुछ सिर्फ इसलिए हूं कि मेरे दिल में एक जलन है कबीर भाई से। उर्दू लिख सकते हैं वो, पढ़ सकते हैं वो, पढ़ा सकते हैं वो, लेकिन मुझे उर्दू हरफ नहीं सिखाएंगे ताकि मैं पेपर न निकालूं कहीं, उनके कहीं कार्टून न बना दूं। अब मैंने 2-4 लोगों को पकड़ा है, पाकिस्तानियों को, और मेरी उर्दू का पहला पर्चा 15 तारीख को आपके लिए, आपके दरवाजों पे भी आपको हासिल होगा। ये पेपर का नाम है संगम उर्दू, और ये जो रसाला होगा, ये जो पर्चा होगा, खालिस रूप से लिटरेरी होगा। उर्दू के बड़े बड़े अदबी, जिनको यहाँ भी अदबा गया है, वो भी उसमें होंगे, ये भी उसमें होंगे, और आप सभी उसमें होंगे। उर्दू जिसको लिखने आती हो उर्दू स्क्रिप्ट में, वो सभी उसमें होंगे। और बहुत मोटी है, ये किताब की तरह निकलेगी हर 15 दिन पे, 16 सफ़ों की, 16 सफ़ों की। आज तक की तवारीख में नॉर्थ अमेरिका से कोई लिटरेरी मैगजीन 16 सफ़ों की 50 साल तक नहीं निकला। ये 50 साल, ये क्या मुशायरा नहीं है? अच्छा, गुस्ताखी माफ। आपने बड़ा अच्छा कहा, वैसे आपने याद दिला दिया मुझे। 50 वर्षों के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत, देशभक्ति का नाटक कर सन 47 में बांट दिया था भारत माँ को 2 टुकड़ों में। तब भारत आजाद हुआ था, तब सबने सपना देखा था नव स्वराज्य में राम राज का। और 50 वर्षों के बाद आज, मैं काट देता हूं समय के लिहाज से, आज बताऊंगा मैं सबको झूठी सच्ची बात, भारत देश महान है लोगों, सुन लो मेरी बात। कितना महान है ये सुनिए। पाकिस्तान पे भी यही बात है। सुन लो मेरी बात, बजाओ जोर से ताली, ताली रोकिएगा। माया देवी, रबड़ी देवी, राजनीति की नई प्रणाली, न्यू स्टाइल, गिन गिन कर गुणगान देश का, भ्रष्ट राष्ट्र नेता स्वदेश का। भ्रष्ट का मतलब होता है, समझ लीजिए, मर्दों ने भी पहनी है अब कान में बाली। हिंदुस्तान में
ये कौंसल जनरल ने कहा ना कि हिंदुस्तान में जो है बच्चे माँ को और माँ बाप जो हैं कहते हैं उनके बाबूजी, कभी नहीं कहते डियर माई डार्लिंग कहते हैं जी हिंदुस्तान में। गिन गिन कर गुणगान देश का, भ्रष्ट राष्ट्र ने था स्वदेश का, मर्दों ने भी पहनी है अब कान में बाली, याद करो मिलजुल कर तुम अब माता काली भ्रष्ट मुंड की माला पहने। जो माँ काली है दुर्गा की, वो मुर्दों की माला पहनती हैं, कटे हुए सरों की। भारत माँ के कलंक प्यारे जो ठहरे, न्याय नहीं अन्याय जहां पलता हर पल, गंगा भी बहती है पर मैली है कल कल। नेताजी सुभाष भगत सिंह गांधी, सुना भैया सरदार जी शायर साहब, नेताजी सुभाष भगत सिंह गांधी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, खुदीराम बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर, डॉक्टर प्रसाद, जवाहर जयप्रकाश और जाने कितने, किसी भी एक भी मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया है आपके लिए। भ्रष्टाधिपति नरसिंह राव, सीताराम, पवार, जगन्नाथ, लल्लू, पंजू, देशद्रोही राजनीतिज्ञों को फलते फूलते देख लगता है राजनीति तेरा बुरा हो, काट लूं गला अगर हाथ में छुरा हो। जनाब मुझे लंदन जाना पड़ा, आप लोग नहीं जा सके लंदन। ये हिंदी की जो छठी कॉन्फ्रेंस हुई, ये तवारीख में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तवारीख में इतना पैसा एक परिवार ने लखनऊ से आकर नहीं लूटा। 68 करोड़ इंडियन रुपीस बस ट्रांसफर टू डॉलर, और उसको ट्रांसफर करके लाया गया लंदन में। और वहाँ पे जो गत की गए लोगों की, जो लोग आए, 150-200 लोग वहाँ से आए, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए ये लोहा लेने के लिए कि हम हिंदी को इंग्लैंड में इसको प्रमोट करेंगे। सारे बिल्ले अंग्रेजी के, सारे बोर्ड इंग्लिश के। और वहाँ पे मेरी बेगम को प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया गया, पीछे लगा हुआ है अंग्रेजी में 6th हिंदी कॉन्फ्रेंस वगैरह। मेरी पत्नी जब स्टेज पे आई तो मैंने कहा नहीं, तुम ये अवार्ड नहीं लोगी जब तक ये अवार्ड हिंदी में नहीं लिखा हुआ होगा। ये अवार्ड हमारा नहीं है। इंग्लैंड में दे रहे अवार्ड तो इंग्लिश के साथ हिंदी में भी दो। अगर आप यहाँ बाहर जाके चाय पी रहे थे तो आपने सुना होगा 50 to 75% पीपल जस्ट लाइक मी वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बड़े शर्म की बात है कि आप लोग उर्दू अदब की महफिल में आए, एक शाम एक दिन कपड़े नहीं पहन सकते पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, एक दिन मेकअप करके नहीं आ सकते, एक दिन 2-4 घंटों के लिए मुसलमान नहीं बन सकते। निमंत्रण ये मुझे फिर टोक देंगे, मैं चला जाऊंगा अब। निमंत्रण ये निमंत्रण है, बुलावा। ये बुलावा मुझे आया था प्राइम मिनिस्टर का, एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी का, टोरंटो के, जो अभी चले गए आपसे, बड़े अदबी बनते थे ये मुझसे कहते हैं तुमसे मुझे बात नहीं करनी है, तुम बदतमीज हो। बहुत अच्छे, मैं बदतमीज नहीं हूं। मेरी बेगम नहीं आई, तुम वहां जाए कुछ जरूर हंगामा करोगे, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा मैं बदतमीज हूं। एक निमंत्रण का सवाल था, सम्मेलन में बड़ा माल था। मुझे मालूम था 68 मिलियन है, 68 करोड़ है, तो मुझे भी कुछ मिलेगा रहने के लिए। रहने की जगह नहीं मिली। रहने की जगह मुझे यहाँ के गवर्नर ने दी, यहाँ के एम्बेसडर ने दी रहने की जगह 5 स्टार होटल में। मैंने सोचा सरकारी हाकिम बोलेंगे तुमने हिंदी सेवा की है 15 वर्षों सेवा की है, करवा दूं मैं रिजर्वेशन, फिर तो लंदन तक पक्का समझो। यही थे जो यहाँ खड़े थे। भारत तक की यात्रा का मैं करता हूँ सब तैयारी। और बोलो अब अटल बिहारी, कार्यवाही भारत अधिकारी। उस समय ये थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, हटा दिए गए थे बीच में। बस चुनाव तक तुम प्रचार बीजेपी का कर दो। काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इज आस्किंग मी टू प्रमोट बीजेपी इन टोरंटो। ओके, अपनी बीबी को भी घर जीते उसके पैसे से अटल बिहारी, कुंज बिहारी बुला लेंगे तुमको दिल्ली तक। उच्चायुक्त ने वादा किया है तुमसे कि पीएमओ तक तुम्हें मिलाएं, पद्मश्री दें, पद्म विभूषण, अलख निरंजन, महाप्रयोजन, सब मेरे अधिकार पड़ा है। भारत में कुछ नहीं धरा है। आज से 17 साल पहले किसी ने यहाँ से हिंदी के पेपर निकाले, 4 महीने में उसको दिल्ली बुला लिया प्लेन से और उसको अवार्ड कर दिया, पेपर बंद हो गया। बस तुम मुझको सखा बना लो, ये कहते हैं हाई कमिश्नर काउंसिल जनरल। बस तुम मुझको सखा बना लो, अपने बिजनेस में बस मुझको प्रॉफिट का एक पार्ट बना लो, मुझे कुछ डॉलर मुझको दे डालो, फिर जो चाहो अब लिखवा लो, मन में कुंठा कभी न पालो। तुमने लालू नाम सुना है? हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रतिभा है लालू यादव, द ऑनेस्ट मोस्ट मैन इन इंडिया। उसने बेचारे ने 7 साल में कुल मिलाकर के सिर्फ 200,000 करोड़ पैसे कमाए, चारा खा के। ईमानदार आदमी है, ग्वाला है बेचारा। ब्राह्मणों को बड़ी तकलीफ हुई। हाँ जी, तुमने लालू नाम सुना है, नरसिंह जी का नाम सुना है। उन सब ने सर्वोत्तम नेता अटल बिहारी है अभिनेता, ऊपर से विशुद्ध घी समझो, देश प्रेम बस नारा भर है, उसमें अब कुछ नहीं धरा है। वाजपेयी जी को यूं समझो, वो विशुद्ध हैं, वनस्पति है। अब पाकिस्तान पे आऊंगा। हिंदुस्तान लीवर की वो डालडा छाप है, और तुम फिर साथ सहोगे। डालडा में इस दुनिया में
तुम क्या मेरे साथ रहोगे? सच पूछो तो फर्क नहीं है डालडा और घी में, सच पूछो तो फर्क नहीं है उनमें। उस समय उनमें थे वाजपेयी जी और दूसरे उनमें थे अपने नवाज शरीफ साहब, दोनों घुटे हुए हैं। सुनिए दोनों घुटे हुए हैं। एक देश प्रेमी, हिंदू प्रेमी, जमाने भर के 50 वर्षों के, 1953 से वो लीडर थे, बड़े ईमानदार नेहरू के खिलाफ। दूजा थोड़ा नया है, व्यापारी है, व्यभिचारी है, करप्ट। और एक अदने से मुल्क का बेचारा व्यापारी प्रधानमंत्री। पाकिस्तान अदना सा मुल्क है, इटली बहुत बड़ा मुल्क है, इंग्लैंड बहुत बड़ा मुल्क है, और एक अदने से मुल्क का बेचारा व्यापारी प्रधानमंत्री है, चीनी का, और न जाने किस किस चीज का व्यापारी घोटाला है। पर देखो तो शैतान शरीफ को कार्यवाही बिहारी का दोस्त बनता है। वो कहता है वाजपेयी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, कहता है वाजपेयी शुद्ध है, वाजपेयी जी मित्र हैं अपने, बस से कहते हैं ना, वाजपेयी जी मित्र हैं अपने। और सोनिया का नाम सुना है आप लोगों ने? सोनिया गांधी, हाँ, मेरी अपनी मामी है वो, मेरे मामा जी की पत्नी, मेरे मामा थे राजीव गांधी जी। और सोनिया सोनी है, पर वह तो इटली की इडली है, हाँ, वह तो इटली की इडली है। 14 के बाद क्या होता है? 15, वह बस 2 लाहौल बिला, वह विदेश की कुड़ी अभागन, क्योंकि वो विधवा है, उसका है क्या काम? स्वदेशी वाजपेयी के स्वर्ण देश में उसका है क्या काम? छी, ऊपर से वो ईसाई और गोरी, हैं, गोरी सभी चाहते हैं वैसे, छी, ऊपर से वो ईसाई और गोरी। और सुषमा का नाम अगर आपने नहीं सुना हो, सुषमा स्वराज, जिन्होंने कहा था मैं बेटी हूं हिंदुस्तान की, वो विदेश की हैं, बहू हैं, लड़ाई हुई, खाया पिया बदन है उसका, अच्छी खासी मोटी है, समझ लीजिए जीत चुकी है वह सोनिया से। अपनी राम कहानी, भारत की वो मुजबानी, खालिस्तानी, टोरंटो से इस लंदन तक, और लंदन से अब भारत तक, उस भारत को क्या कहने जिस भारत के लाल बहादुर समझे थे, वो लाल बहादुर वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद है जो जैसे आलू की बात हम करते हैं, उस आलू के बारे में, हे भगवान, लालू कहता है वो कृष्णा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कृष्णा हूं, लालू अभी भी कहता है कि मैं कृष्णा हूं। धुला हुआ पटना है उनका और बिहारी, यानी मैं, ये कहिए अटल बिहारी डरे हुए हैं प्रभु कृष्ण से, या लालू जैसे भालू से, कहीं वो बढ़कर फूंक न मारे, फूंक मारकर उड़ा न डाले, कार्यवाही हूं प्रधानमंत्री। जय प्रधानमंत्री। मेरा फोन है, मेरे उस फोन पे, मुझे भारतवर्ष जाने का वीसा नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं पाकिस्तान 28 तारीख को, और 6 तारीख को मैं दिल्ली जाऊंगा। क्यों, ऐसी क्यों तकलीफ है आपको? मैंने, but they are very happy। आपकी बेगम मेरी मुरीद नहीं हो सकती, माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ, मैंने कोई गलती की नहीं, ये मेरे लिए मुझसे गलती है, मेहरबानी आपकी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने अभी उमेश विजय साहब का बहुत ही पॉलिटिकल और सोशल इंसाइट से भरा हुआ कलाम सुना। उम्मीद है आपको बहुत से मसाइल का हल उसमें मिला होगा। अब मैं एक ऐसे शायर को दावत कलाम दे रही हूँ जो पहली बार हमारी महफिल में हिस्सा ले रहे हैं। उनका नाम है सैयद महमूद अली इबरत, और उन्होंने अपने तारुफ के लिए एक शेर दिया है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, मेरा ख्याल है बहुत सौ के काम आएगा। कहते हैं, खर्च आमद से कम होया इबरत, खर्च आमद से कम होया इबरत, बस यही सूरत किफ़ायत है। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है सर साहब। गज़ल के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ, समझ फरमाइए। गर्क हैरत में दीद ओ दिल थे, गर्क हैरत में दीद ओ दिल थे, तेरे जलवे मेरे मुकाबिल थे। गर्क हैरत में दीद ओ दिल थे, तेरे जलवे मेरे मुकाबिल थे। आईना उनके आगे साकित था जब वो आईने के मुकाबिल थे। आईना उनके आगे साकित था जब वो आईने के मुकाबिल थे। नाज बरदार थे हजारों तो जिसमें हम ही बस एक बिस्मिल थे। नाज बरदार थे हजारों तो जिसमें हम ही बस एक बिस्मिल थे। और किसी आस्ताने पर जाते तेरे दर ही पे तेरे साइल थे। जान इशारों से बेरुखी तौबा, जान इशारों से बेरुखी तौबा, क्या हम ही सितम के काबिल थे। जान इशारों से बेरुखी तौबा,
क्या हम ही इस सितम के काबिल थे? दिल इबरत की दास्तां सुनकर कुछ वो लुत्फ़ो करम पे माइल थे। अब मैं एक और शायर को कलाम के लिए ज़हमत दूंगी, और वो भी पहली बार टोरंटो के सामीन के सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। वो बहुत ही कोहनमश्क शायर हैं और उनका ताल्लुक़ अशाअत से भी है, नशर व अशाअत से। उन्होंने उर्दू की बहुत ही बेहतरीन किताबें पब्लिश की हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनका यहाँ टोरंटो में आना हम सब लोगों के लिए काबिल क़द्र होगा। मेरा मतलब जनाब ताहिर असलम गोरा साहब से है। उनके तारुफ़ के लिए मैं उनके 4 मिसरे पढ़ूंगी। वो नज़्म के बहुत अच्छे शायर हैं। कहते हैं, ये उदासी की बात नहीं, सोचने की बात है। ये उदासी की बात नहीं, सोचने की बात है। अचानक याद आता है मैं भी कोई हूँ। शुक्रिया नज़र साहिबा। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से 2 मुख्तसर नज़्में हाज़रीन के लिए पेश करता हूँ। पहली नज़्म का उन्वान है दिन को भूलना है। दिन जैसा गुजारा है उससे निकलने की रात को कोशिश करो। दिन जैसा गुजारा है इससे निकलने की रात को कोशिश करो। दिन भर कैसे कैसे काम किए हैं, दिन भर कैसे कैसे काम किए हैं जिनको करने के लिए सोचा नहीं जा सकता, लेकिन दिन इन्हीं कामों में गुजर गया। रात को इससे निकलने की कोशिश करना है। किसी आदर्श की उंगली को पकड़ना है, मकसद की पगडंडी पर डोलना है। दिन को भूलना है, अगले दिन में फिर जाना है। दूसरी नज़म, इसका उन्वान है पनाह गाहें। ये खौफ नहीं सच लगता है, ये खौफ नहीं सच लगता है। कमरे में पड़े सॉफ्ट टॉयज आधी रात को किसी की रूहें ले आते हैं। ये खौफ नहीं सच लगता है, कमरे में पड़े सॉफ्ट टॉयज आधी रात को किसी की रूहें ले आते हैं। रूहें धड़ वाली चीज़ों में आती हैं, रूहें धड़ वाली चीज़ों में आती हैं और आकर छुप जाती हैं। रूहें धड़ वाली चीज़ों में आती हैं और आकर छुप जाती हैं। भालू का पेट हिलता है, बिल्ली के कान बंद होते हैं। भालू का पेट हिलता है, बिल्ली के कान बंद होते हैं। खरगोश की आंखें चमचम करती हैं। इन बातों से खौफ कैसा, इन बातों से खौफ कैसा। रूहें बेचारी पनागाहों की मुतलाशी, रूहें बेचारी पनागाहों की मुतलाशी। सॉफ्ट टॉयज को कोई काम नहीं, बच्चे दिन को ये खिलौने उठाएंगे। रूहें बेचारी सो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।